Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to start chapter 4 education, and before I get started I need to tell you certain things. First, a very quick rapid fire or a very quick revision. In my previous lecture I told you something about functionalist approach. What is functionalism is all about. Just a quick review, right? Why don't you, it's better you can sit in front of me, right? So what is functionalism? Functionalism is basically an approach. It's most of the sociologists, they simply think if we want to investigate the trends, investigate the society, so the very shortest are the best way to understand societies, the behavior of people. We have an approach which is called functionalist approach, and according to functionalist approach, one can say that we need to understand, we need to get awareness how the different institutions in a society work. So the very first thing, it's all about the division of society into multiple institutions. On the second level or second tier, one can say that once we decide about the institutions of the society, then we need to understand every single institution have multiple functions, and we can categorize functions into two. For instance, the core functions are the peripheral functions. What are the core functions? Core functions are the prime, the primal, the most important are the significant functions which are compulsory for every single institution to perform. And I need to mention one thing. Every single institution has its own functions. For instance, we talk about the institution of the society, one can say that family is an institution, education is an institution, police is an institution. So every single institution has multiple functions. Then we categorize our divide functions into core and peripheral functions, right? This is all we have in my previous lecture. And the last thing in reference to revision was, it is important for the society to flourish that you have a very strong, a robust nexus between the institutions. For instance, if we talk about the family institutions, one can say that family must perform their functions, but at the same time family need to prepare the followers or the people to connect with the next or upgraded institutions. For instance, it's a responsibility of family to give awareness to their kids how to behave in school, how to behave with different kids while you people will be working in school, how to work in teamwork, how to move on into life. So one can say that the foundation must be provided by an institution for the upcoming institution. Is it clear? Right? So Ahmed, is it important that one specific institution can build foundation for the upcoming institution? So when we people simply switch to another institution, we already had the foundation, and we will take less time in upcoming situation to understand certain things. So let's begin. It's a page 120, and I need to mention this is the book I'm going to follow, right? So it's page 121. Let's begin. It's theories about the role of education. The relationship between formal education system and the economy is complex with many dimensions. This is partially because the structure and the organization of education always reflect ideological beliefs about its meaning, purpose, and relationship to other social institutions. The complexity is also due to the way in which economic system of production, distribution, and exchange has developed historically. So according to this paragraph, this is the thing which I told you before. It is important to understand society. For instance, here, and it is a kind of connection between education to the economic structure of a country. So if we have, you can say most of the people, they are literate, really know how to work, how to adapt themselves according to situations. So one can say that then we can categorize. For instance, I tell you one thing. If we talk about, let's take the example of Sri Lanka. The literacy rate of Sri Lanka is 99%. 99%, the maximum in the SAARC countries.
Southeast Asian countries. I mean, uh, it's the maximum. So it is important to have education, but it is not important that every single person go towards the medical field or the engineering. So important thing is the very first stage you need to be educated. This is the first stage. On the second level, then you can simply categorize, you want to be a doctor, you want to be an engineer, or you can work in, for instance, work as a labor force, right, in a factory or industry, because your education is entirely different as compared to the person who is preparing for medical. Clear? So very easy thing, right? At the same time, we need to allocate a chunk of people for technical education as well. So technical education is as much important as the medical science or the engineering science. Clear? So for the prosperity of a country, it is important to have a balance, a proportion within the different fields. I mean, it is important to be a doctor. At the same time, it is important to be an electrician. It is important to be a cobbler. It is important to be a labor. Yes, it is important. It's far more important to be on the same level. So according to this paragraph, हम ये कह सकते हैं जी, थोड़ा सा इसको switch भी करते हैं. Basically जो मैं सारा हम जो पढ़ रहे हैं या समझाना चाह रहा हूँ, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कैटेगराइज किया गया चीज़ों को. हमने कुछ बंदों का ये ख्याल था, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमें सोसाइटी को समझने के लिए उसको इंस्टीट्यूशंस में तकसीम करने की ज़रूरत है. अब जो हमारी बात है, जो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो हम एजुकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं. डिफरेंट अप्रोचेस हैं हमारे पास. जैसे फंक्शनलिस्ट हैं, वो एजुकेशन को और तरह से सोचते हैं, यानी हमें एजुकेट क्यों होना चाहिए. अब ये सवाल है, इस चैप्टर का सवाल यह है कि हमें, हमारे लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है. क्या हमारे लिए एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकें, एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे इंजीनियर बन सकें, या एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन सकें, या एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें. तो देखें, सबसे पहले आपको एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, डॉक्टर, ये बात की बात है. तो अब डिफरेंट हमारे पास थीरीज़ हैं, डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं इस चीज़ को, एजुकेशन को समझने के लिए, कि एजुकेशन का बेसिक फंक्शन क्या है. ये इस चैप्टर का सारा हमारा जो क्रक्स है, जो मरकज़ी हल इसमें हमने जो पढ़ना है, वो क्या है कि डिफरेंट व्यूज़ हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हम एजुकेशन लेना क्यों चाहते हैं. तो आज इस चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो फंक्शनलिस्ट हैं वो बेसिकली क्या समझते हैं कि एजुकेशन का क्या फंक्शन है. एक तो हम नेचर से बहुत तंग हैं अभी, कि नेचर हमारे साथ साथ ही है. तो मेरे बेटे, अब हाँ जो तरी, सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज़ है, उसे हम कहते हैं जी फॉर्मल एजुकेशन. ये फॉर्मल एजुकेशन क्या चीज़ है मेरे बेटे? सो इसकी एक हमारे पास डेफिनेशन है, जो हम इसको गो थ्रू करेंगे जी, कि एजुकेशन दैट टेक प्लेस विद इन द फॉर्मल सेटिंग इन स्कूल, कॉलेजेस और इन यूनिवर्सिटी. आप स्पेसिफिक, आपका लर्निंग मेथड है, स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट्स हैं. बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन जो है आपकी क्या है, कि जिसमें आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं. देखिए, आई वुड लव टू बी अ डॉक्टर फॉर इंस्टेंस, तो इसको बनने के लिए मैं घर बैठ के डॉक्टर नहीं बन सकता, मुझे किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना पड़ेगा. जब इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगे तो एक उसका स्पेसिफिक टाइम होगा, इस टाइम पे आपको आना है, इस टाइम पे आपका ऑफ है, ठीक है. आपका फिर एक स्पेसिफिक आपका एक स्ट्रक्चर है कि 3 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, आपका सेमेस्टर के बाद आपने एग्जाम्स देने हैं. तो ये सारा जो चीज़ है मेरे बेटे, ये किसके अंदर आती है? ये आपकी आती है फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, कि जिसमें आपकी फॉर्मल सेटिंग है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक टाइमिंग, ऑन ऑफ आपका, फिर एक स्ट्रक्चर जिसमें आपकी टेस्टिंग होगी, जो बताएगा कि आपका जो है, जो आपने प्रिपेयर किया वो किस लेवल पे आपने प्रिपेयर किया. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मल सेटिंग. मैं बेटे, functionalist view about how education contributes to value, consensus and social solidarity. Functionalists see society as a social system consisting of different institutions like family, work, education, and so on. These institutions are functionally connected in two ways. अब जी क्या वो कहते हैं कि जो फंक्शनलिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि जो आपकी सोसाइटी है, ये एक आपका सोशल सिस्टम है, जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक अप है. और वो उन्होंने एग्जांपल दिया है हमारे पास, जैसे फैमिली है, वो एक आपकी, वो आपका एक आपकी इंस्टीट्यूशन है, आपका वर्किंग प्लेस, आपकी जो भी आप जिस जगह पे भी जाते हैं वो भी आपकी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं. तो बेसिकली फंक्शनलिस्ट के हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ जो कनेक्ट करता है, उसके साथ मिलता है वो टू वेज की वजह से. दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मिलता है. सबसे पहले, ईच इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म सर्टन एसेंशियल कोर फंक्शंस such as providing the means of social work or secondary socialization. ठीक है मेरे बेटे?
फॉर इंस्टेंस अब इसमें एजुकेशन आ जाता है। अब वो चीज़ बताना क्या चाह रहे हैं, वो ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि जो सारी कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका एक कोर फंक्शन है जो कि उसको मस्ट परफॉर्म करना है। जैसे मिसाल के तौर पे एज प्रोवाइडिंग द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि कैसे आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी में। और सेकेंडरी उसका क्या है जी, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जैसे एजुकेशन है। अब देखिए मेरे बेटे, हमने बहुत दफ़ा पढ़ा कि जो सोशलाइजेशन है उसकी दो टाइप्स हैं। एक आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन है। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है आपकी बेसिकली वो क्या चीज़ है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है जो आपको इनिशियली स्टेज पे जैसे पेरेंट्स आपको करते हैं, जो आप घर में रह के करते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे एक बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी स्कूल जाने से पहले तक हम कह सकते हैं किसी हद तक कंफर्म वो क्या चीज़ है, वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन है। जो आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो आपकी कहाँ स्टार्ट होती है, जैसे कॉलेज में स्टार्ट हो सकती है, यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होती है, आपकी वर्किंग प्लेस पे ये नहीं स्टार्ट होती है। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ तो ये मेरी प्राइमरी नहीं, ये मेरी सेकेंडरी है। सेकेंडरी में बेसिकली हमें पता चलता है कि हमने बंदों के साथ, जब हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हमने बंदों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। ये आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। मेरे बेटे को समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे बेटे आपको भी समझ आ रही है? तो पहली चीज़ जो हमने क्या समझा कि फंक्शंस क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सारी के सारे जो आप कोई भी जो सोसाइटी है वो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ पे कंसिस्ट करती है, और हर इंस्टीट्यूशन का एक कोर फंक्शन है जो कि कोर फंक्शन उसका सर्वाइवल है, कि कैसे कोई बंदा उस सोसाइटी में सर्वाइव करता है एक, और साथ साथ हमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी वो प्रोवाइड करता है कि कैसे हम एक जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको प्रिपेयर करता है दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक अप करने के लिए। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, जैसे कि आपका जैसे अभी अब एजुकेशन को समझ लें, फ़र्ज़ करें हम एजुकेशन ले रहे हैं, आप मेरे पास इंस्टीट्यूशन में आते हैं, आप पढ़ते हैं, तो बेसिकली मेरा कोर फंक्शन क्या है? कोर फंक्शन ये है कि मैं आपको सर्वाइवल सिखाऊं, सोसाइटी में आपने कैसे मूव करना है, आपने अवेयरनेस, आपको एजुकेशन, आपको मैनर्स आए, और इसके साथ साथ अगर आपने डॉक्टर बनना है, अगर आपने इंजीनियर बनना है, या आपने टेक्नीशियन बनना है, या आपने किसी भी फील्ड में जाना है, तो मैं आपको उस फील्ड के हिसाब से आपको प्रिपेयर करूं कि आप मेरे पास पढ़ के अगर किसी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में जाएं तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। तो फिर इस चीज़ को तो मेरे बेटे अब कोई हमारी डिबेट नहीं होनी चाहिए कि सारी इंस्टीट्यूशंस का कोर फंक्शन क्या है, अंडरस्टैंडिंग, और सेकेंडली उसके साथ साथ क्या चीज़ है कि वो आपको सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी सिखाएंगे कि कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ जब आपने लिंक अप होना है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। दूसरा इसमें क्या रहता है, इन अच्छा री टू परफॉर्म दीज, बेटे ज़रा तवज्जो से, फंक्शन सच एज इंस्टीट्यूशंस नीड certain things from other institutions. If in contemporary societies where the workplace usually require a certain level of knowledge and skills, the education system need to provide individual with the necessary social and intellectual abilities. School performs these functions by approving accreditation, certain levels of education and skill through qualification. अब जैसे उन्होंने क्या चीज़ बता रहे हैं, वो अब हमें बता रहे हैं कि जैसे जो सेकंड आपका है वो क्या चीज़ है कि आपने अपने आप को कैसे एक इंस्टीट्यूशन ने फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है दूसरे के साथ। ठीक हो गया मेरे बेटे? यानी बेसिकली ये एक इधर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक आप कह रहे हैं कि थिन डिफरेंस है। उस तरह की पहली चीज़ क्या आ गई कि आपको प्रिपेयर करना है इंस्टीट्यूशंस ने अपने हिसाब से, और फिर प्रिपेयर करना है आपको किसके हिसाब से, जो आपकी अगली इंस्टीट्यूशन है, जो आपका इनकमिंग फ्यूचर में आप आ रहा है उसके साथ करना है। तो बेसिकली फंक्शनलिस्ट जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज किसके ऊपर कर रहे हैं, वो उन फंक्शंस के ऊपर कर रहे हैं कि जो किसने करना है, जो एक इंस्टीट्यूशन ने करना है, और उन फंक्शंस के ऊपर भी एम्फसाइज कर रहे हैं जो उस इंस्टीट्यूशन ने आपको लिंक अप करना है किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ भी। इधर तक मेरे हिसाब से कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समझ ना आई हो, ठीक है। उसके बाद अब वो क्या कहते हैं, देखें जी, द डेवलपमेंट ऑफ मास एजुकेशन इज देयरफॉर explained in term of functional differentiation. Institutions develop to perform particular functions such as work and education. If the needs of one institution are not being adequately met, tensions develop within the system that threaten its stability and ability to function. For example, industrial form of work requires a literate and a numerate workforce. Without these skills, the economy cannot function. Institutions such as family cannot meet this new requirement to stability. So the stability of the system is threatened. It can be restored in one of the two ways. अब वो क्या बात करें, वो आपसे ये बात करें कि फॉर इंस्टेंस अगर आपका एक जो इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे तरीके से अपने कोर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो सोसाइटी के अंदर आप कह लें कि फिर जो प्रोग्रेस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, हम उसको मीट नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी एजुकेशन ही क्वालिटी की नहीं है, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिटी की नहीं है,
अगर आपकी एजुकेशन जो है वो आपको अच्छे तरीके से उन चीज़ों को रिक्वायर नहीं कर रही कि जो हमें आगे यानी रिक्वायर है किसी और इंस्टीट्यूशन के लिए, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी सोसाइटी फिर स्मूथली वर्क ऑन नहीं करेगी। अब हम क्वालिटी के डॉक्टर्स ही प्रोवाइड नहीं करें तो क्या सोसाइटी आपकी एग्जिस्ट तो कर लेगी, लेकिन चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसी तरह अगर हम एजुकेट बंदों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, यानी हम उनको इस लेवल पर नहीं अच्छा एजुकेट कर सकते कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके या इवन वर्किंग प्लेस पे जाके अच्छा परफॉर्म करें, तो इसका मतलब है कि वो इंस्टीट्यूशन है वो फिर डाई फंक्शनल हो जाएगा। डाई फंक्शनल का क्या मतलब है कि वो सोसाइटी में एक खला आ जाएगी, एक स्पेस आ जाएगी, एक वैक्यूम आ जाएगी उसकी वजह से, और आपका जो प्रॉस्पेरिटी का प्रोसेस है यहाँ तो बिल्कुल वो शट हो जाएगा, या वो इतना स्लो डाउन हो जाएगा कि आई मीन इट्स नथिंग, आप उससे कोई भी प्रोडक्टिविटी फिर नहीं ले सकेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब इशू क्या है हमारे पास कि अगर आपका एक जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो वर्किंग अच्छी नहीं वो कर रहा, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसके कोर फंक्शंस हैं उनको अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर इसका मतलब है सोसाइटी आपकी क्या हो जाएगी? स्टैटिक हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आपकी रुक जाएगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं? इसको हम अगर ऐसा हो जाए तो रिस्टोर कैसे कर सकते हैं? जो पहली चीज़ है, इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन सच एज फॉर इंस्टेंस, हम उन्होंने फैमिली एग्जाम्पल दिया है, फैमिली और रिलीजन evolves to perform the required function. This involve differentiation that occurs within the individual institutions. Different roles need to be developed if the institution is to perform its new function. Or secondly, a new institution such as formal education arises to fulfill the need. अब देखिए मेरे बेटे ज़रा तवज्जो से देख रहे हैं, हमारे पास अब मैं बड़ी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा मेरे बेटे। वो क्या है जी? प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि अभी देखें जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने चीज़ों को टेक ओवर कर लिया। आज से 50 साल पहले तक हम ये बात कह सकते थे कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो पेरेंट्स नहीं करनी है। ये एक कंपल्सरी भी थी और एक कन्फर्म चीज़ थी, इस पे कोई डिबेट नहीं थी आज से 50 साल पहले। अब डेवलप कंट्रीज़ ने क्या किया? आपका लेवल बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गई, पेरेंट्स के पास अवेयरनेस आ गई, लड़कियों ने कहा कि हमने भी एजुकेशन लेनी है, हमने अपने कैरियर की तरफ तवज्जो देनी है, जॉब्स करनी है। तो क्या हुआ कि पार्टनर्स के जॉब करने की वजह से जो बच्चे हैं उन पे फिर तवज्जो नहीं, फिर मेड्स बीच में आ गए, फिर किंडरगार्टन्स आ गए। अब देखें प्राइमरी सोशलाइजेशन पहले किसके पास थी? पेरेंट्स के पास थी। ठीक है, अब पेरेंट्स से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से स्विच होकर वो किसके पास चली गई? वो मल्टीपल डिफरेंट चली गई। यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन अगर आप किंडरगार्टन में हैं तो कहने का मकसद वो तो एजुकेशन में चीज़ मर्ज होगी। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फैमिली की थी, फैमिली की थी, पेरेंट्स फैमिली की थी। तो जब फैमिली ने अपने कोर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब है क्या क्वालिटी जो आप कह लें कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अगले शिफ्ट होंगे? अक्सर हमारे पास पेरेंट्स के पास आजकल स्कूल वाले क्या शिकायत करते हैं अपने पेरेंट्स को, बच्चों को क्या, पेरेंट्स को क्या कहते हैं? जी आपका बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्यों? जी आप इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। ये एक मैं जनरल टर्म्स में आपसे बात करूँ। तो जब एक चीज़ अपने कोर फंक्शंस को नहीं करेगी तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक एक सोसाइटी स्टैटिक हो जाएगी, सोसाइटी की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक इंस्टीट्यूशन अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करी तो दूसरी जो इंस्टीट्यूशन है फिर उसको टेक ओवर करना पड़ेगा। या जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या होगी मेरे बेटे कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो फिर उसको या तो अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो अपग्रेड नहीं करी तो फिर उसकी जगह पे एक नई इंस्टीट्यूशन आ जाएगी, वो मर्ज हो जाएगी। अब जैसे आप कह सकते हैं कि अभी देखें फैमिलीज, चाहे यूरोप है, चाहे एशिया है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, बच्चों पे तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है कि हमने किंडरगार्टन आ गया, हम मेड्स रख लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, अल्टरनेटिव हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अब ये देखें यही वजह है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर क्या करते हैं मेरे बेटे? वो फिर पेरेंट्स को छोड़ के मोबाइल फ़ोन्स वाले ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पेरेंट्स को उनसे इतना इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, आपकी फ्रेंडशिप बहुत बढ़ जाती है। अब आप देखें कि अगर एक पेरेंट जगह आपके पेरेंट्स हैं वो आपको कहें कि आपने ये करना है और आपका दोस्त का ये करना है तो आप पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बचपन में कौन सा पेरेंट्स ने आपको टाइम दिया है और आप ज़्यादा शेयरिंग अब पेरेंट्स के साथ नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? आप फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो मेरे बेटे जो अभी आज के हिसाब से जो अभी कंक्लूजन हमारा निकला वो क्या निकला? सबसे पहली बात हमने क्या की? हमने ये बात की कि हर इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन है, ठीक है? दूसरी बात हमने क्या की कि जो इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस हैं हम उनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं कोर में और पेरिफेरल के अंदर। जो कोर के अंदर क्या चीज़ है? कोर वो जो है वो आपका जो बेसिक जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जैसे फॉर इंस्टेंस वो कोर आपका फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर हम एजुकेशन में आएंगे तो फिर एजुकेशन का कोर फंक्शन क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी आपकी सोशलाइजेशन हो जाएगी। यानी हर इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट कोर फंक्शंस हैं, लेकिन एक जो फंक्शन सब इंस्टीट्यूशन का है वो क्या है कि आपने प्रिपेयर करना है अगले लेवल के अपने बच्चों को। यानी पेरेंट्स का या फैमिली का कोर फंक्शन तो हो गया अच्छे बुरे की तमीज़, राइट एंड रॉन्ग क्या है, मोरालिटी सिखाना है, ठीक है, अच्छा बिहेव करना, ये सारा।
और उनका जो पेरिफेरल फंक्शन क्या हो जाएगा, वो भी उनका एक फंक्शन ये भी हो जाएगा कि उन्होंने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करवाना है, इस तरह से ब्रॉटअप करना है कि वो जब एजुकेशन के लिए स्कूल जाएँ तो उनको इतना इशू ना हो, वो ईजिली स्कूल जाके एडजस्ट हो सकें। इसी तरह अगर मैं एजुकेशन का कोर फंक्शन बताऊँ तो बंदों को अवेयरनेस देनी है, लेकिन अवेयरनेस देने के साथ साथ एजुकेशन ने और उसका एक फंक्शन क्या है कि उसने बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट्स को इस हिसाब से प्रिपेयर करवाना है कि जब आप पढ़ने के बाद, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के बाद आप आगे जाएँ तो आप एक अच्छे डॉक्टर के लिए आप बन सकें, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकें, आप अच्छे यानी एक इंडिविजुअल बन सकें। ठीक है, तो जब आप एक अच्छे इंडिविजुअल बन सकेंगे तो इसका मतलब है कि अब एजुकेशन ने या पुलिस ने आपको सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी सोशलाइजेशन करवानी है। ये बात मेरे बेटे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इधर तक तो कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेज पे हमने जो बात पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, वो हमने ये चीज़ पढ़ी कि अगर इंस्टीट्यूशंस अपने कोर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते, कोर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते, तो फिर इसके दो सॉल्यूशंस हैं। इसके क्या सॉल्यूशन है? इसके दो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है कि आपको अपने आप को या तो इंस्टीट्यूशन को एक अल्टरनेटिव यानी यानी अल्टरनेटिव या रिप्लेसमेंट पे ले आना है इंस्टीट्यूशन को, कि उस इंस्टीट्यूशन की जगह पे एक नया इंस्टीट्यूशन आ जाए, या आप अगर फंक्शन नहीं कर रहे तो फिर आपको अपनी डायनेमिक्स चेंज करने की ज़रूरत है। यानी पेरेंट्स को अपने आप को इस सेंस में अलाइन करने की ज़रूरत है कि वो ठीक है जॉब करना चाहते हैं तो जॉब करें, लेकिन वो कुछ अल्ट्रेशन ले आए। ये मेरे बेटे को पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि फिर वो इंस्टीट्यूशन जो अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ों को थोड़ा सा मर्ज करे, चेंज करे। तो पहली चीज़ क्या आ गई, यानी आप प्राइमरी जो आपके जो कोर फंक्शंस हैं उनको रिप्लेस दो तरह से कर सकते हैं। एक, अपडेट करें अपने फंक्शंस को। एक, अगर आप अपडेट नहीं कर सकते तो फिर इसका क्या मतलब होगा, फिर आपने जो आप कोई और आपका है, आपको एक नया इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा जो वो फंक्शंस परफॉर्म करे जो जो आपका एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन कर रहा है। जैसे अमेरिका में आप देखें कि आप फॉर इंस्टेंस अगर लड़की जॉब करना चाह रही है तो आप ये कह लें कि मैं क्या नर्सरीज कह लें, नर्सेज हैं विद इन ऑफिस। ठीक है कि आप ऑफिस में आके काम करें, अपने बच्चों को नर्सरीज में छोड़ दें, या ये भी आपके पास है। आप देखें पहले पेरेंट्स ही बच्चों की अर्निंग और सारा उसको देखते थे कि अपने अर्न करके बच्चों के सारे एक्सपेंसेस करें। अब देखें आपको सोशल वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी फंड्स मिलता है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए कितनी आसानी हो गया, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है ताकि वो सारा कुछ कर सकें। ठीक है, तो बेटे इधर तक कोई चीज़ देखें जो मेरे बच्चों को समझ में ना आई हो। ठीक है, इससे अभी लास्ट चीज़ है जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, वो क्या है मेरे बेटे, वो है इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स आल्सो act as agents of secondary socialization. Individuals take on the norms and the values of the society. This is sometimes done openly, explicitly, for example, through lessons or moral messages in assemblies, uh, are maybe more unspoken, such as through the ways teacher and students interact with each other. So अब वही चीज़ आ गई। देखिए जैसे हमने बात की मेरे बेटे, हमने क्या बात की कि देखिए बेसिक आपका एजुकेशन का फंक्शन क्या है। आपका एजुकेशन का फंक्शन ये है कि आपने बच्चों को अवेयरनेस देनी है, एजुकेट करना है। और अब देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं, देखिए बेसिकली मैं इधर आप मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपका मेरा कोर फंक्शन क्या है कि मैं आपको सोशोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको पहला मेरा कोर फंक्शन ये है कि मैंने आपको इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, मेरा पेरिफेरल फंक्शन क्या होगा या और फंक्शन क्या होगा, जैसे सेकेंड टीयर पे क्या होगा कि मैं आपको मोरालिटी भी सिखाऊं। देखो मेरे बेटे, आपने एक अच्छा इंसान बनना है, आपने गरीबों की मदद करनी है, आपने बंदों के साथ किसी जगह पे भी आप देखें आप आपने कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है, किसी को ये नहीं बुरा नहीं समझना। ठीक है, अच्छी नीयत के साथ ईमानदारी से प्रोफेशनलिज्म को समझना है, वक्त पे आना है, वक्त पे जाना है। ये सारी चीज़ें सोशोलॉजी के अंदर तो नहीं है, तो ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। ये चीज़ें स्कूल असेंबलीज के थ्रू, लेसन्स के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं मेरे बेटे कि जो आप पेरिफेरल फंक्शंस के तौर पर या एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हर इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है मेरे बेटे, अब इसमें अब ऐसे है कि आज अभी हमारा इसमें अभी इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा मुझे जो इशू आ रहा है वो मुझे ग्लासेस का आ रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी ग्लासेस जो है वो ब्लर है, तो मुझे इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। शायद इस वजह से थोड़ा सा मुझे पढ़ने में थोड़ा सा ये नहीं मुझे हेजिटेशन हो रही है। लेकिन बिफोर ये नहीं मैं इसको ख़त्म करूँ, मैं लास्ट विद इन 2 मिनट्स मैं इसको एक रीकैप देना चाहूँगा आज के लेसन के हिसाब से। वो क्या चीज़ है कि आज वी सिंपली डिस्कस व्हाट इज़ फंक्शनलिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज़। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स दिस एजुकेशन इज़ दैट the education institution basically perform two functions. One is the core function, which is just to give awareness, and the second are the peripheral function, just to prepare yourself for the upcoming institution, which is more probably your working place. So basically a school, a college, or a university not only give you awareness about how to become a good person, but at the same time
obviously they provide you the assistance, they guide you, they give you lessons how to work about the specific subjects. Like I'm here in my academy teach you sociology and the other subjects like that. uh, I mean, if we talk about the society, a society can be dynamic, a society can be progressive, are on the way of prosperity if all the institutions perform according to their assigned functions. If an institution is not able to perform the specific or the core functions, then your society is going to be static. The proportion or the speed of your prosperity slow down, and even it is possible that you, I mean, the society is simply stuck, and you people have to face inflation, even it is possible. And so how to cope with this problem? I mean, for instance, if an institution is not able to meet the requirements, to meet the goals, so we got two things to cope with this issue. One thing is you need to replace the institution with a new institutions. And secondly, I mean, you take your time, and the institution need to upgrade, I mean, its functions. I mean, you need to modify the function of the institution so they can better perform. So the overall changing one are, when you simply say overall changing is not possible, then it is possible to have a new institution. This is we have for this lecture today. Hope to talk to you on the same channel with some more exciting and informative stuff. Till then, take great care of yourself and feel Allah.